اور میں ایک کوئی چیز پوچھتا ہوں، آپ کے گھر کے پیچھے کوئی پیڑ ہے؟ جی الحمدللہ میرے گھر میں اپنے پیڑ لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسا کریے 4 6 10 چھوٹے پتھر لیجئے اور گرگٹ مارنے نکل جائیے، کیونکہ آپ صرف میری نظر میں صرف اسی کام لائق ہیں۔ الحمدللہ میں نے بتایا تھا آپ کو 2 دفعہ بتائی کہ میں 50 سال کے لگ بھگ ہونے کو آیا ہوں۔ جی بالکل۔ تو اب مطلب 1 سال اور بچا ہے، اس کے بعد 6 سال کی بچی ڈھونڈنے نکلو گے نا؟ مرتے تو تم لوگ کہ تم لوگوں کو واجب القتل اسی لیے تو کہا گیا ہے سر۔ مطلب کہ ان بھائی صاحب سے پڑھنے لکھنے والی باتیں کرنا بیکار ہے۔ یہاں پہ کوئی قرآن کی آیت پیش کر سکتا ہے؟ جی کون سی آیت چاہیے؟ ایک بار 27 82 ہے شاید، ایک بار پیش کریے، دھیان دی 27 82 پیش کریے۔ یہ تو کوئی زمین سے جانور نکالیں گے جو باتیں کرے گا، ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے۔ ہاں ابھی محمد صاحب بولے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، تو پھر یہ جانور کون ہے؟ اس کا جواب میرا مفتی آ کے دے گا انشاءاللہ، جس دن آپ کے سامنے لا کے بٹھاؤں گا ان کا جواب ان سے آپ کسی مفتی سے پوچھیے گا۔ آپ بات سمجھیں، آپ جو بات بار میرے کو ادھر لا کے کھڑا کر دیتے بھائی میں نے آپ کو بتایا کہ میں شاید اتنی نالج نہیں رکھتا، ہم قرآن مجید کے اندر اندازے نہیں لگا سکتے، آپ بات سمجھو، ہم اندازے نہیں لگا سکتے، ہم غلط تشریح بھی نہیں بیان کر سکتے، ہمارے لیے یہ ایک ایکس مسلم ہو جانے والی بات ہے۔ ہمارے محمد جی بات سنیں، آپ ہر بات پہ تفسیر بھی ہم مفتی لے بیان نہیں آتے کر ہیں، سکتے۔ دھمکی دینے کو آپ خود آ ڈاکٹر گئے۔ ایک منٹ، جی تو سر، مطلب آپ صرف کسائی کا ہی کام کرتے ہیں کیا سر ہاں جی؟ جی کسائی کا کام کرتے ہیں آپ صرف؟ بول محمد سکتا جی ہوں میں؟ پلیز ہاں پلیز۔ ہاں سر آپ جدھر کی طرف لے کے آ رہے ہوتے ہو میں بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں، یہ کسائی کا کام نہیں ہے، یہ کسائی کا کام نہیں ہے، یہ شریعت کا کام ہے۔ آپ تھوڑا ارے صبر ٹھیک کریں، ہمیں اسٹریم پہ آنے دیں، پھر ہم آپ ارے کو یہ ساری چیزوں کے اچھا آپ جن آیتوں کا آپ خلاصہ چاہتے ہو، ہم پھر جب بیٹھیں گے تو ہمارے پاس بھی مفتی آئیں گے، وہ ان کا خلاصہ بھی بتائیں گے، اس کی تشریحات بھی بتائیں گے، اس کا ترجمہ بھی بتائیں گے، اس تک آپ کراس کوسچن کیجئے گا۔ آپ تو ایک پھر ایسے بندے سے کراس کوسچن کر رہے ہو جو اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں منہ سے کوئی غلط لفظ نہ نکل جائے، آپ اس بندے سے مخاطب ہو جو بندہ اس بات کو یقین کرتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو اس کی غلط تشریحات سے بھی روکا ہوا ہے، اگر میں خدا نہ کرے کوئی غلط تشریح کر بیٹھا تو شاید میں اپنے آپ کو زندگی بھر معاف نہ کر سکوں، اس لیے میں اس چیز سے بچتا ہوں۔ جی جی آپ اس لیے اس محمد جی چیز جو سے بچتا یہ ہوں۔ آپ خدا کا خوف کھا رہے ہیں نا، غلط تشریح نہ کر سکے، مرتد کی سزا سر تن سے جدا بھی اسی زمرے میں آتی۔ مرزا غالب جی بات کریں سر پلیز۔ مطلب کہ ان بھائی صاحب سے پڑھنے لکھنے والی باتیں کرنا بیکار ہے۔ تو وہی تو کہہ رہے ہیں، وہ جو بات کریں پھر وہ مفتی پہ ڈال رہے ہیں۔ قتل کی سزا، قتل کی دھمکی مفتی نہیں دے گا، قتل کی دھمکی محمد علی نہیں صاحب دے رہے ہیں۔ ان کو ایک کام نہیں کچھ محمد چیزوں کے صاحب اب جیسے نماز کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، میری بات سمجھے گا، نماز کے بارے میں پڑھا ہے ہم نے کہ جی نماز آپ چھوڑو گے تو اس کا یہ عذاب ہے، ہم نے پڑھا ہے۔ آپ مجھے نماز کے بارے میں پوچھے کہ نماز نہ پڑھنے والی کی سزا کیا ہے، نماز نہ پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے، تو یہ جو چیزیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ حج نہ کرنے یعنی کہ آپ وسائل رکھتے ہیں، حج نہ کرو تو آپ کے پر کیا یعنی کہ اس کا وہ ہے سزا ہے، بالکل اس کے اوپر تو میں ڈسکس کر سکتا ہوں، مگر یہ پوچھیں کہ جی حج کے اندر کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ڈیفینیٹلی میں جب حج پہ جاؤں گا تو میں ان کو یاد کر کے جاؤں گا، حج کے اراکین کیا ہیں ٹھیک ان ہو کو گیا میں محمد یاد علی کر صاحب، کے ٹھیک جاؤں ہو گا، گیا۔ ان کے لیے میرے پاس باقاعدہ لیسن ہوگا، اس کے لیے میری ٹریننگ ہوگی، اس کے لیے پورے کو کلاسز جوائن کرائی جاتی ہیں، ہم لوگوں کو کلاسز جوائن کرائی جاتی ہے، اسی لیے ایک کرائی جاتی ہے منٹ کہ اپنے اراکین پورے کر سکو، تو یہاں پر آپ بھی وہی چیز کر رہے ہو کہ ان آپ اللہ سامنے چلے ایسے ٹھیک رکھ ہو گیا دیتے ہو محمد علی صاحب، ذرا انہیں کوسچن نیکسٹ پوچھنے دیں۔ پہلے غالب جی پلیز، غالب سر۔ ایک لائن بول دوں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، تو برائے مہربانی تھوڑا صبر رکھا کریے سر جی۔ اور میں ایک کوئی چیز پوچھتا ہوں، آپ کے گھر کے پیچھے کوئی پیڑ ہے؟ محمد علی صاحب جی الحمدللہ میرے گھر میں اپنے پیڑ لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسا کریے 4 6 10 چھوٹے پتھر لیجئے اور گرگٹ مارنے نکل جائیے، کیونکہ آپ صرف میری نظر میں صرف اسی کام لائق ہیں۔ جی
थैंक यू सर, आपकी ऑब्जर्वेशन है, मैं इसके ऊपर जी कुछ कह सकता, आपकी ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल जी। मैं जब आपको आके ओपनली मुर्तिद कह सकता हूँ, आप सुनते हो तो आप मेरे बारे में भी कुछ बोल सकते हो, मुझे भी ओपनली सुनना चाहिए। और बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे। गालिब मिर्जा गालिब जी, एक सवाल पूछता हूं मैं इनसे, जरा आप इजाजत दे दें प्लीज। मैंने कुरान को 42 दफा बार तर्जमा पढ़ा। कुरान में सिर्फ 3 नमाजों का जिक्र है, तुलुए आफ्ताब से पहले, उसके बाद जब आफ्ताब मिड डे पे आ जाए, और फिर गरूब आफ्ताब। 3 वक्त अल्लाह को याद करो। 3 नमाजें यहां से साबित होती हैं, तो आप 5 क्यों पढ़ रहे हैं? नंबर 2 कि खतना का जिक्र पूरे कुरान में नहीं है, आप किस तरह उसको इस्लाम का सर्टिफिकेट बना के तो बच्चों के खतने कर रहे हैं? 2 सवाल हैं। थैंक यू। अच्छा, मैं सबसे पहले तो खतना के ऊपर ये जवाब दे दूं कि ये सुन्नत रसूल अल्लाह है, और हम इसको क्या नाम, ये आपको भी पता है डॉक्टर साहब, आप चूंकि मेडिकल से रिलेटेड हो तो आप बेहतर जानते हो कि सुन्नत जब पूरी हो जाती है, इसीलिए हम इसको सुन्नत कहते हैं कि ये हमारी सुन्नत रसूल अल्लाह है, और ये हमारे पे फिर लाजिम है कि नहीं, सुन्नत मुसलमान फर्ज होती है, बच्चा जो सुन्नत मर्द फर्ज तो बच्चा। नहीं होती सर, सुन्नत फर्ज होती है जी सर, क्या? सुन्नत फर्ज फर्ज नहीं है होती है सर, आपके मेरी मुताबिक? बात समझेगा, मेरी बात समझेगा। ये हमारे लिए इस हवाले से फर्ज हो जाती है कि हमारे जो सुन्नत है, देखिए मेरी, आप इसको अल्फाजों में ना पकड़े, हम इसको बिल्कुल हम इसको फर्ज की तरह लेते हैं, है तो ये सुन्नत, मगर हम इसको लेते फर्ज की तरह है। मेरी बात समझ रहे, हम लेते फर्ज की तरह है। हमारे लिए यहाँ पे सुन्नत जो है, हम चूंकि उसके जो फायदे हैं, फवाइद जो हैं, वो एक मुसलमान ही जान सकता है जिसका खतना हुआ होता है। जो सुन्नत करवाता है ये फायदा वही जान सकता है, जिसका नहीं हुआ वो उसको नहीं समझ सकता। एक बात। हेलो दूसरी जी, बात है कि हम इस सुन्नत को बिल्कुल फर्ज की तरह ही लेते हैं, है वो सुन्नत मोहम्मद अपनी जगह है। जी जी सर। मिर्जा गालिब। ये सर जी क्या नाम है, क्या उम्र बताए थे आप अपनी? 50 साल। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बताया था आपको 2 दफा बताई कि मैं 50 साल के लगभग होने को आया हूँ। जी तो बिल्कुल। अब मतलब 1 साल और बचा है, उसके बाद 6 साल की बच्ची ढूंढने निकलोगे ना? सुन्नत पूरी करने की बात कर रहे हैं वो, आपने कहा ना मिस्टर सुन्नत गालिब, पूरी एक मिनट करनी एक है। मिनट एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं जी बोलेगा। प्लीज मिस्टर प्लीज। गालिब, इस तरह की बकवास करनी है ना, इस तरह की बकवास करनी है तो फिर मैं इसी तरह का बकवास नहीं जवाब भी नहीं, दूंगा। मोहम्मद साहब मेरी आप बात समझिएगा, जज्बाती मैं हो गए सर, आपको सुन माफी रहा हूँ, चाहता इसका हूँ। ये मतलब नहीं सर कि मैं मैं हाथ जोड़ के बोलूँ, माफी आपको चाहता हूँ। इजाजत दूंगा इस तरह की बकवास करो आप बैठ के स्ट्रीम के ऊपर। मोहम्मद साहब अपनी माफी बच्ची चाहता दे हूँ। दो, मैं कर लेता हूँ निकाह। 6 साल नहीं की नहीं नहीं, बच्ची, अपनी बच्ची लाके दे दो मिस्टर गालिब, मैं कर लूंगा निकाह, मुसलमान भी कर बस लूंगा और निकाह भी कर लूंगा। लाके दो अपनी बच्ची। ये बकवास कर रहे हो यहाँ पर बैठ के, तुम्हारी मैं नहीं बकवास नहीं, सुनने के लिए बैठा हूँ। फिर मोहम्मद बंदे साहब को माफी इंस्टिगेट चाहता हूँ करते होगे मैं। जी आगे से बकवास करे, फिर बोलोगे जी मेरी स्ट्रीम खराब करके चले गए। सर आपने सुन्नत की बात की कि आप सुन्नत को फर्ज के तौर पे ले रहे हैं, खतने से बात चली, आप उन्होंने एक किस चीज को सवाल किस पूछा चीज है, से जज्बाती ना हो। ये किस बकवास से मिला रहे, किस बकवास से मिला रहे, उसको आप यहाँ पे प्रमोट कर रहे हो। और ये जनाब पता माफी नहीं, चाहते हैं इसीलिए तो आपसे। मुर्तिद हो तुम लोग, इसीलिए तो मुर्तिद हो तुम लोग, कि तुम लोगों को वाजिबुल कत्ल इसीलिए तो कहा गया है। क्यों मैं निकला हूं बाहर, तुम लोगों के एड्रेस क्यों ढूंढता फिर रहा हूं? पागल हूं मैं अपने सारे काम धंधा अपना बिजनेस छोड़ के तुम लोगों के एड्रेस ढूंढता फिर रहा हूं? क्यों सर ढूंढ रहा हूं आपकी मैं? बड़ी क्यों लोगों मेहरबानी, को जोड़ रहा हूं एड्रेस। मैं? क्यों स्ट्रीम की बात कर रहा हूं? क्यों तुम लोगों को घंटे घंटे भर 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठ के सुन रहा हूं? इसलिए कि मैं उस काम को करने जा रहा हूं। अब तुम लोग अपनी खैर मनाओ, जिस दिन तुम लोग के एड्रेस में इंडिया के अंदर फेंकूंगा, सर लाइव स्ट्रीम के अंदर मैं दिखाऊंगा तुम लोग की शक्लें दिखाऊंगा, उस मोहम्मद वक्त से साहब, डरो, उस वक्त से मोहम्मद डरो, साहब उस देखें, वक्त से डरो। आप जिस अब नबी की यहाँ पर बात मसला कर आ रहे रहा हैं है उन पे कि कूड़ा एक फेंका मुर्तिद का जाता था, वो आगे से कूड़ा फेंकने पे सब्र करते थे, आपने एक बात पे इतना हंगामा उठा दिया। मैं माफी मांग रहा हूं अगर कोई बदतमीजी होगी आका की शान में। उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया है, वो भी इसलिए उन्होंने किया कि आपने कहा कि मैं एक सुन्नत को फर्ज की तरह लेता हूं, हालांकि कुरान में इनके जिक्र पास नहीं है। बकवास इल्म है, इनके पास मेरे सर मोहम्मद दुनिया सल्लल्लाहु जानती है अलैहि आयशा की वसल्लम के उम्र 9 हवाले से साल है बकवास मोहम्मद सर। इल्म है। सर इसीलिए माफी तो चाहते मुर्तिद हैं है ये आपसे। बंदा, और किस लिए मुर्तिद है ये, सर और मुर्तद किस की लिए बात मुर्तिद नहीं, है इस ये? वक्त अकल इल्म की हम बात हो क्यों रही है। बार बार कह रहे हैं कि ये मुर्तिद की सजा क्या होनी चाहिए? क्यों अल्लाह ताला ने तो ये सवाल मुर्तिद को पूछने वाले इतनी की जल्दी सजा भी रखा क्या गया है कि सरपंच मुर्तिद से को सबसे जुदा पहले है? सजा दो? मोहम्मद साहब बात सुने, देखें, आप भड़क उठे, अगर आपके दिल पे चोट लगी माफी चाहते हैं, या तो मान जाएं कि आका ने 9 साल की आयशा से शादी नहीं की, हाँ या ना में जवाब दे दें, अगर गलत है तो बता दें प्लीज। सर मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, आप वो इल्म के वो सवाल कर रखे हो मेरे सामने
जिसकी मैं आपको हाँ या ना में जवाब देके चले जाऊं, बाद में पता चले तहकीक से कि ये सवाल ऐसे नहीं ऐसे था, इसका जवाब ये नहीं था ये था, तो मैं इसको कभी भी मैं जिसकी नॉलेज नहीं रखता या जिसके ऊपर मेरे को डाउट होता है कि मैं उसके ऊपर हाँ बोलूं या ना बोलूं, वो मैं नहीं जवाब देता। मैं अपने मजहब को बड़ा सीरियस लेता हूं, मैं अपने मजहब की गलत तशहीर नहीं कर सकता। उसके लिए यही है हुक्म, हमारे लिए बार बार यही हुक्म दिया है कि जिस चीज की नॉलेज ना हो उसके अंदर ना बोलो। यहाँ मुझे जिस चीज की नॉलेज है मैं वही बात कर रहा हूँ और बार बार कर रहा हूँ कि मुर्तिद के साथ क्या करना है। अब मेरा यकीन है कि जो कुछ मेरे कुरान मजीद में और मेरी अहादीस शरीफ के अंदर लिखा हुआ है वो सच लिखा हुआ है। इसीलिए मैं अपने सारे काम धंधे, अपने सारे कारोबार को साइड लाइन लगा के मैं आप लोगों के पीछे पड़ा हूं, ऐसे नहीं पड़ गया मैं। सर आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारे पीछे पड़े हैं, अपना वक्त दें। एक सवाल का जवाब जी मिर्जा गालिब बात करें प्लीज, थैंक यू। ये बोल रहा हूँ मोहम्मद साहब वीजा पासपोर्ट बनवा लिए? वीजा पासपोर्ट बना लिए, ये पूछ रहे हैं गालिब साहब। मैं बताता हूँ गालिब साहब, आपके घर के अंदर या आपकी गली के अंदर दरख्त है? वो गिरगिट नहीं है भाई वहां पे। हाँ तो जाके ढूंढ ले, फिर पत्थर ना मारे तो कम से कम ढूंढ लो। नहीं टेंशन मत लीजिए, जिस तरह की आपकी नॉलेज है उसको उसी तरह जवाब दूंगा मैं। अब मेरे को पता है कि आपकी नॉलेज कितनी है, अगर जितने आप मेरी नॉलेज के ऊपर उंगली उठा रहे हो, मैं तो अपने मजहब की नॉलेज के ऊपर बात करते हुए मैं थोड़ा घबराता हूं कि यार मेरे मुंह से कोई गलत लफ्ज़ ना निकले, इसकी वजह से मैं बैक करता हूं, वरना और कोई वजह नहीं है। ये मैं कोई हिंदू नहीं हूं कि मैं बड़बड़ बोल दूंगी ये गीता में ये लिखा हुआ है। भाई मेरे को नहीं पता तो फिर नहीं पता, वहां पे जहां पे नॉलेज नहीं है मैं खामोश हो जाऊं। जितनी नॉलेज आपकी है मुझे भी अंदाजा हो रहा है। जज्बात को कंट्रोल करें। देखें प्लीज, आपको बाकी इस वक्त 1200 लोग सुन रहे हैं, थोड़ा सा जज्बात को कंट्रोल करें प्लीज। पहली तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, अगर मुंह से कोई ऐसी बात ठंडे तरीके से आप बड़े ठंडे तरीके से आप लोग यहाँ पे बड़े ठंडे तरीके से अगले बंदे को इंस्टिगेट करते हो कि जी ऐसा जुमला बोलो कि अगला बंदा भड़के। ये 6 साल वाली जो बात करी थी मैंने तो जवाब दिया, तो अब वो उसके ऊपर ठंडे हो गए। ये नहीं बोल रहे कि भाई मैं तो तैयार हूं मैं 6 साल की बच्ची से शादी करने के लिए, लेके आए मिस्टर गालिब अपने सामने। सर ये जाती सवाल नहीं था, आप सॉरी माफी चाह रहे हैं, जाती सवाल नहीं था। आपने धड़ल्ले से कहा कि एक सुन्नत है लेकिन मैं फर्ज बना के पूरा करूंगा, ये करते हैं। उन्होंने इतना कहा कि जब आप 50 के ऊपर होंगे तो क्या जिस तरह आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की आयशा से शादी की, क्या आप भी कर सकेंगे? आप हाँ या ना में जवाब दे दें। आप क्यों मैं हाँ या ना में जवाब दूं जिसकी मुझे पता ही नहीं है, मैं हाँ या ना में जवाब कैसे दे दूं? जब तक मेरे को नॉलेज नहीं होगी, जब तक मैं नॉलेज रखने के बावजूद उसको वेरीफाई करूंगा। इसीलिए जब कोई आलिम बैठ के गुफ्तगू करता है, मैं तो सिर्फ मोबाइल पकड़ के आपसे बात कर रहा हूँ, या मैं उठूंगा यहाँ से मोबाइल बंद करूंगा, अपना लैपटॉप खोल लूंगा, वहां से बात करूंगा। बात समझे, जब कोई आलिम बात करता है उसके सामने कभी आप देखिएगा मुनाजरे के अंदर उसके सामने किताबों को कितना बड़ा ढेर रखा हुआ होता है, वो हर चीज जानने के बावजूद किताबें रखता है कि यार मैं कहीं गलत ना बोल दूं, इसलिए रेफरेंस उठाता है, रेफरेंस उठा के बात आगे करता क्या है। गलत बोला जाएगा? कत्ल से आगे क्या गलत बोला जाएगा? आप जरा मिर्जा गालिब की बात सुने, आप थोड़ा सा कंट्रोल करें, एक थोड़ा सा गिलास पानी का पी लें। इन्नल्लाह मास साबरीन। आप गिलास पानी का पिए। गालिब साहब जी बात करें आप प्लीज। मैं ये बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं आलिम लोग दुनिया भर की किताब लेके बैठते हैं। अरे भाई मैं भी 100 किताब लेके बैठ जाऊं, बात पढ़ने ना पढ़ने की होती है ना। हाँ जी क्या होता है? जी गालिब साहब, इसका मतलब है आपने कभी मुनाजरे देखे ही नहीं है। आपने इसका मतलब है मुनाजरे देखे ही नहीं है। आप कभी मुनाजरे देखो तो यूट्यूब के ऊपर बहुत से पड़े हुए बहुत अच्छे अच्छे आलिमों के एक ही मजहब को लेके एक ही चीज को लेके मुनाजरे हुए। कभी हमारे बड़े आलिमों के मुनाजरे तो देखे आप, वो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, उसके बावजूद सैकड़ों किताबों की और सैकड़ों लोगों की टीम लेके बैठते हैं कि कौन सी बात हो रही है, कौन सा रेफरेंस चाहिए, वो लोग उसको ट्रेस आउट करके देते हैं। तो आप मुनाजरे के अंदर बैठे हुए हो तो आप कभी मुनाजरे को, अच्छे मुनाजरे को देखो तो आपको यही मिलेगा। आप इस मुनाजरे को छोड़ दे, आप किसी प्रोफेसर से बात कर ले तो वो भी किताबों के सहारे की बेस के पर ही बात करेगा। ये डॉक्टर साहब अच्छी तरह से जानते हैं, अगर रेफरेंसेस होंगे, कोड होगा, प्रोफेसर कभी किसी क्लास में जाता है तो वो क्यों अपने साथ किताबें उठा के लेके जाता है? वो क्यों किताब खोल के अपने सामने टेबल पर रख के बात करता है? वो तो सब कुछ जानता है, फिर तो जरूरत ही नहीं है। मोहम्मद अली साहब पॉइंट आ गया। मिर्जा गालिब साहब प्लीज बात करें। मोहम्मद भाई
तो उन आलिमों से जरा पूछ के मुझे बता देना कि बुढ़िया कूड़ा कहाँ फेंकती थी, किताब में या मस्जिद में। मुर्ते दो तुम लोग कि तुम लोगों को वाजिबुल कत्ल इसीलिए तो कहा गया है। सर मतलब कि इन भाई साहब से पढ़ने लिखने वाली बातें करना बेकार है। मैं 50 साल के लगभग होने को आया हूँ। सर आपके घर के पीछे कोई पेड़ है? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। तो ऐसा करिए 4, 6, 10 छोटे पत्थर लीजिए और गिरगिट मारने निकल जाए। तो मुर्ते दो तुम लोग कि तुम लोगों को वाजिबुल कत्ल इसीलिए तो कहा गया है। मतलब कि इन भाई साहब से पढ़ने लिखने वाली बातें करना बेकार है। मैं 50 साल के लगभग होने को आया हूँ। तो अब मतलब 1 साल और बचा है, उसके बाद 6 साल की बच्ची ढूंढने निकलोगे ना। तो मुर्ते दो तुम लोग कि तुम लोगों को वाजिबुल कत्ल इसीलिए तो कहा गया है। ये मेरे नबी का सर बाद 6 साल की बच्ची ढूंढने निकलोगे ना। ये मेरे ईमान का हिस्सा है। तो गिरगिट मारने निकल जाइए। तो मैं डेफिनेटली कत्ल करूंगा। इन भाई साहब से पढ़ने लिखने वाली बातें करना बेकार है। ये मेरे ईमान का हिस्सा है। सर कत्ल करते हैं तो अंदर से एक तस्कीन और एक सुकून मिलता है। तो ऐसा करिए 4, 6, 10 छोटे पत्थर लीजिए और गिरगिट मारने निकल जाइए। तो मुर्ते दो तुम लोग कि तुम लोगों को वाजिबुल कत्ल इसीलिए तो कहा गया है। इन भाई साहब से पढ़ने लिखने वाली बातें करना बेकार है। सर ये मेरे ईमान का हिस्सा है। यही मेरा ईमान कहता है। सर